Hello students, I am Shrikant Sharma from Sadafal Academy. Today we will discuss about the atomicity of molecules and subatomic particles, atomic numbers and atomic mass. In previous video we discussed about the what are the elements, what are the compounds, what are the atom, what are the molecules. For learning the atomicity of molecules, be with me in this video. Before learning the atomicity of molecule, we should know what are the molecules. Molecules we already discussed in our previous video. देखिए molecules क्या होता है? As I told you earlier, molecules are formed when two or more atoms combine. दो या दो से ज्यादा एटम सेम तरह के और डिफरेंट तरह के अगर कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दो सेम ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है क्योंकि हाइड्रोजन के सेम एटम दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। Nitrogen is also a molecule of element as two similar atom of nitrogen N combine to give a molecule of nitrogen N2. If we talk about water, water is a molecule of compound in which two hydrogen atom combine with one oxygen atom and we will get a molecule of compound that is water. Similarly, glucose is a molecule of compound. In this glucose molecule, 6 carbon atom combine with 12 hydrogen atom and 6 oxygen atom to give a molecule of glucose. See, these are the molecules. Phosphorus molecule consists of 4 phosphorus atom. These are the molecules. Now learn what is the atomicity. As we can see, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो देखिए कितने एटम कंबाइन कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनाने में। ऑक्सीजन के केस में दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी हो जाएगी 2। ऑक्सीजन को हम बोल देते हैं डायएटॉमिक। सिमिलरली हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी 2। नाइट्रोजन की एटोमिसिटी भी 2 हो जाएगी। अगर एटोमिसिटी 2 हो जाती है तो हम बोल देते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। सिमिलरली फॉस्फोरस की बात करें, दिस इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की एटोमिसिटी 4 है बिकॉज 4 phosphorus atom combine to give a molecule of phosphorus. Phosphorus is tetraatomic. If we talk about ozone, 3 oxygen atom combines to give a molecule of ozone that is O3. So the atomicity of ozone molecule is 3 because 3 oxygen atoms are combining. Similarly, in case of water, the atomicity is 3. Water and ozone both are triatomic molecules. If we talk about the metal atom like sodium, sodium is monoatomic. Similarly, calcium is monoatomic, like this. Okay, so atomicity is defined as the total number of atoms present in a molecule, or you can say total atom कितने combine कर रहे हैं एक molecule बनाने के लिए, चाहे वो element का molecule हो चाहे वो compound का molecule हो। इस तरीके से देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन है, how many atoms are present in a H2S molecule and phosphate ion. So what basically the question asking, it is said to find the atomicity of these two molecules. The molecule of H2S is 3. The atomicity of molecule H2S is 3. Similarly phosphate ion की जो एटोमिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बेटे, देखिए फॉस्फेट आयन जो है वो है आपके पास PO4 3 नेगेटिव। इसमें देखिए फॉस्फोरस का एक एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं इस तरीके से। PO4 नेगेटिव चार्ज तो है ही 3, ठीक है, चार्ज को कंसीडर अभी नहीं करते हैं। हम देख रहे हैं कितने एटम्स कंबाइन कर रहे हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में, फॉस्फेट आयन में। तो टोटल 5 एटम्स आर कंबाइनिंग, 4 ऑक्सीजन एटम एंड 1 फॉस्फोरस एटम, सो इट्स एटोमिसिटी इज 5। तो एटोमिसिटी फॉस्फेट आयन की हो जाती है 5, इट इज अ पॉलीएटॉमिक। अगर एटोमिसिटी 1 है तो इट्स कॉल्ड मोनोएटॉमिक, अगर एटोमिसिटी आपके पास 2 है तो डायएटॉमिक। सिमिलरली एटोमिसिटी अगर आपके पास 4 है तो टेट्राएटॉमिक, एटोमिसिटी 3 पे ट्राईएटॉमिक, और अगर 4 से ऊपर है लाइक इन केस ऑफ फॉस्फेट आयन सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स एस8 मॉलिक्यूल, तो हम बोल देते हैं 4 से ऊपर एटोमिसिटी है तो पॉलीएटॉमिक। देखिए एटोमिसिटी सीखने के बाद अब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं तो समझिए, एटम्स के बारे में समझिए।
वी नो व्हेन वी कीप ऑन स्प्लिटिंग अ सब्सटेंस, अगर हम किसी सब्सटेंस को तोड़ते जाएं, जैसे आयरन रोड को स्प्लिट करते जाएं, इवेंचुअली एट लास्ट हमें एक चीज मिलेगी जिसको फर्दर स्प्लिट कर पाना इम्पॉसिबल होगा, दैट इज कॉल्ड एटम. एटम इज ऑल्सो कॉल्ड परमाणु, एज वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो. सो एटम को परमाणु भी बोलते हैं. और एटम की जो एग्जिस्टेंस है, सबसे पहले महर्षि कर्नाड जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने बताया कि परमाणु को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते. और सेम डेल्टन ने भी, सर जॉन डेल्टन ने भी बताया. सर जॉन डेल्टन सेड द एटम इज फर्दर इंडिविजिबल. एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, सर जॉन डेल्टन कहते हैं. देखिए, लेकिन आज हमें पता है कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आज हमारे पास. वी नो टुडे वी हैव 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. देखिए ये किसने डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कब डिस्कवर हुए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, आइए सीखते हैं. देखिए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी बता देते हैं आपको. अगेन कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुए थे. अभी बेसिक्स आप जाने किस किस ने कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल कब कब कौन कौन से ईयर में डिस्कवर करे हैं. देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया बाय जे थॉमसन. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन ईयर 1897. 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई. और एक एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. दिस इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड दिस वाज परफॉर्म्ड बाय जे थॉमसन. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जे थॉमसन, उनके पीछे उनका apparatus है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप है कैथोड रेज का. ठीक है, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में. अभी सिर्फ आप याद रखेंगे The proton was discovered by E. Goldstein, Egan Goldstein पूरा नाम था, in 1898 by an experiment called canal ray experiment. जनरली पूछ लिया जाता है क्लास 9th के बच्चों से, बताइए what was the name of the experiment by which E. Goldstein discovered the proton. तो the experiment was canal ray experiment, or it is also known as anode ray experiment. Neutron was discovered by James Chadwick, J. Chadwick. Neutron was discovered by James Chadwick in 1932. 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. और कैसे डिस्कवर किया था, बाय बम्बार्डिंग दी हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल. देखिए यू कैन सी इन फिगर, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम मेटल पे बम्बार्ड किया. और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी को क्लेम किया इन 1932. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, दिस ई गोल्डस्टीन. देखिए ई गोल्डस्टीन को देखिए, साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, देख लेने, ऑल्दो कि पूछे नहीं जाते हैं, कि नाम पूछ लिए जाते हैं और बाकी एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चन क्लास 9th में नहीं आते हैं. बेस की बात करें, ठीक है, 11th क्लास में थोड़ा सा इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सिखाया जाता है आपको. दिस इज जेम्स चैडविक एंड जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन बाय बम्बार्डिंग द हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल ऑन द बेरिलियम एटम, बेरिलियम एलिमेंट. देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर लर्निंग दी एटॉमिसिटी एंड दी सबएटॉमिक पार्टिकल्स, अभी हमें पता है कि हमारे पास 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. देखिए ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये एक रुदरफोर्ड के द्वारा दिया गया एक एटम का सिंबल है. ठीक है, एटम की रिप्रेजेंटेशन है. देखिए एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रहता है और उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. ये जो सर्कुलर पाथ आप देख रहे हैं इनका नाम है के एल, आगे भी और होती हैं जैसे एम हो जाएगा, एन हो गया, इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में. इन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया गया है, के एल एम एन एंड सो ऑन. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एटम के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम सेपरेटली टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में. इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएं तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी nucleus in circular path called orbit or shell. What are the name of these shells? K, L, M, N. These are the name of the shell and so on. Electrons are negatively charged. As I told you, electrons are negatively charged. इलेक्ट्रॉन की मास के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है.
सारा का सारा मास एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। एटम का सारा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। protons and neutrons are present in the nucleus. Mass of atom is due to the proton and neutron. मास ऑफ एटम जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। अभी हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। सीखिए, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, जो कि शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम में आ भी सकते हैं और अपने शेल को छोड़ के जा भी सकते हैं एटम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं। ठीक है, शेल से चले जाते हैं या शेल में आ जाते हैं। इस तरीके से याद रखेंगे। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। What do I mean when I say atoms are electrically neutral? I mean एटम पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना तो नेगेटिव चार्ज है। एटम न्यूट्रल है। It do not have any charge, neither positive charge nor negative charge. फिर आप बोलते हैं कि सर एटम में तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, फिर भी एटम न्यूट्रल कैसे है? तो इसका एक ही रीजन है, जितने एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एटम में प्रोटॉन भी होंगे। यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। दैट्स व्हाई एटम इज कंसीडर्ड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। याद रखिएगा। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स किसी एटम से रिलेटेड है जो कि आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप यूज करेंगे हायर क्लासेस में, 11th में, 10th में। देखिए, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एटम में कितने प्रोटॉन है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको हम उस एटम का एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। जनरली एटम को एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? इफ समवन आस्क, आप बताएंगे एक एटम में कितने प्रोटॉन है, उसी को हम उस एटम का एटॉमिक नंबर बोलेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाते हैं, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही एटॉमिक नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन तो आ जा सकते हैं एज वी डिस्कस। इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के एटम को चला गया है, या बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आके एटम में आ गया है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर वेरी नहीं करेगा। इसलिए हम जो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं वो ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से की जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, हैशटैग साइन जो मेंशन है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम में कंफर्म हो जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो इफ समवन आस्क व्हाट इज एटॉमिक नंबर, बेटर टू डिफाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यू मे राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है या एक एटम में कितने प्रोटॉन है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मास नंबर। एज आई टोल्ड यू, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल। जो ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, उनका मास नेग्लिजिबल है। तो मास एटम का किसके कारण है? न्यूट्रॉन के कारण है और प्रोटॉन के कारण है। तो मास नंबर को डिफाइन किया गया है, मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन plus number of neutron. As the mass of atom present inside the nucleus, and nucleus contain the proton and neutron only, so we write the mass number as the number of proton plus number of neutron. Mass number is denoted by capital letter A. Similarly, atomic number is represented by the capital letter Z, like this. इस तरीके से समझे आप। यहां पर इस टेबल में प्रोटॉन का मास दे रखा है, रिलेटिव मास, चार्ज दे रखा है। चार्ज को आप याद रखेंगे, ये प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है बट नेचर अपोजिट है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज की यूनिट होती है बेटे कूलम्ब, C4 कूलम्ब, याद रखना, COULOMB कूलम्ब। कूलम्ब इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। सिमिलरली मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास देखें केजी में गिवन है। नेग्लिजिबल मास है इलेक्ट्रॉन का और ऑलमोस्ट सिमिलर मास है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। आफ्टर लर्निंग द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, let's see what is the symbol of the atom, how we represent the atom.
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम कैसे किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मेरे साथ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सीखने के बाद देखिए हम सिंबल सीखते हैं, किसी भी एटम का सिंबल कैसे लिखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल कार्बन का दे रखा है। कार्बन देखिए, कार्बन का सिंबल होता है C, और लेफ्ट मोस्ट साइड पे हम ऊपर की ओर लिखते हैं कार्बन का एटॉमिक मास, जिसको हम मास नंबर भी बोलते हैं, और नीचे लिखा जाता है बेटे एटॉमिक नंबर। कोई भी सिंबल है, लाइक जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर गिवन है, X इज अ सिंबल ऑफ एन एटम, A इज द मास नंबर और इसको एटॉमिक मास भी आप बोलते हैं, Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कार्बन का सिंबल है। अगर कार्बन के सिंबल इस तरीके से आ जाए तो आप बताएंगे इसका एटॉमिक मास है 12 और एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं डेट इज 6। इस नंबर से, इस सिंबल से आप काफी कुछ चीजें बता सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट दे रखा है, एज वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कार्बन की केस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं, 6। प्रोटॉन कितने हैं कार्बन में, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में प्रोटॉन भी हो जाएंगे 6। देखिए अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास गिवन है कार्बन का 12, तो यहां पर हमने 12 पुट कर दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं कार्बन में, जो एटॉमिक नंबर रहता है 6, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां पर 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 6, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन एटम इज 6। सिंपल। इलेक्ट्रॉन पता करना है तो जो आपके पास नीचे लिखा है दैट इज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6। if we talk about proton, the proton is 6. if we talk about neutron, 12 minus 6, that is again 6। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन भी उतना ही हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दें, 23 जो एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर 11 घटा दें, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर शॉर्टकट लिखे हैं, आप याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। ये स्टेटमेंट गलत लिख दी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अगेन एटॉमिक नंबर। इस तरीके से याद रखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। तो इसको चेंज कर लेंगे, दिस इज एटॉमिक, दिस इज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप A में से Z घटा दें, इस तरीके से। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस, द सिंबल ऑफ एटम एंड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको कमेंट में आंसर करेंगे। मैं यहाँ पर एक सिंबल लिखता हूं, कैल्शियम का सिंबल। कैल्शियम का एटॉमिक, कैल्शियम का जो एटॉमिक सिंबल है दैट इज Ca। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। आपको बताने हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। कमेंट में लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको टॉपिक समझाया गया है जो समझ आए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।